chat box. Okay, father may have a look at it. So please try to respond. Otherwise, father will see that nobody is responding. तो बहुत अजीब लगेगा, right? So please respond. Okay, all of you are in 10th standard. Please try to respond. Okay, difference between plant and animal cell is clear. Now we move forward to essential parts of a cell. Okay, do you have any doubt in the previous topics, like difference between plant and animal cell, or anything, any topic? No, ma'am. Okay, nobody has a doubt. So we'll move forward with the next topic, which is essential parts of a cell. Please take out your books and take out the page number 2. Okay, it's in page number 2. The gross structure of cell, essential parts of cell. Okay, it's in page number 2. And listen carefully. I'm not reading the whole paragraph. मैं आपको समझा दूंगी. Okay. So first is the cell membrane or the plasma membranes. Okay. हम पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन का, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. ठीक है. अब you can write in your notebook. You have your notebooks, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so give a topic, write the topic, essential parts of a cell. Okay, bold में लिख लो. And then point number 1 लिख लो, cell membrane. Okay, there are 3 essential parts of a cell. ऐसा लिख लो, 3 essential parts of a cell. Point number 1 डाल के लिखो cell membrane. जो भी मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज राइट इट डाउन. आपको बहुत इजी होगा फिर एग्जाम में लर्न करने के लिए. ओके, अब बुक पढ़ने जाओगे, बुक में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा. बुक देख के सब बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे हाइफन्स लगा के बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिए, तो मैंने उस पॉइंट्स को शॉर्ट किया है. ओके, ट्राई टू लर्न देम, ट्राई टू राइट देम एंड देन लर्न देम. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे लिखो ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एंड ट्राई टू बी अ लिटिल फास्टर बिकॉज हमको ये थोड़ा जल्दी खत्म करना है. आपका सेल लंबा चैप्टर है, इसके बाद और भी चैप्टर्स हैं, सब लेंथी चैप्टर्स हैं. तो अभी हम लोग ऑफलाइन मीट नहीं कर सकते, तो बहुत दिक्कत हो रही है ऑनलाइन में भी. नहीं तो मैं ब्लैक बोर्ड में लिख के ही पढ़ा देती, बट आप लोग ट्राई करना, ट्राई टू राइट इट फास्ट. ओके, अभी हमारे पास पीडीएफ नहीं है. आई एम वेरी सॉरी. फ्रॉम मंडे आई विल ट्राई टू teach you through PowerPoint presentation. Okay, अभी इस हफ्ता we have to go like this. Okay, this is your last class. अभी तो Saturday Sunday छुट्टी है. So okay, लिख लिया, also known as plasma membrane. ठीक है. Now listen carefully. सेल जो होता है लिविंग मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, और सेल में क्या होता है, फाइन पोर्स होते हैं, सेमी परमिएबल होता है. आपने पहले भी पढ़ा कि सेल सेमी परमिएबल होता है, फ्रीली परमिएबल नहीं होता है, पूरा चीजों को अंदर नहीं आने देता. सेल मेम्ब्रेन जो होता है कुछ चीजों को ही, कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर आने देता है, तो वो सेमी परमिएबल हो गया. ठीक है, तो राइट लाइक दिस. जो लेक्चर नोट्स में दे रही हूँ, ट्राई टू राइट दैट. आपने लिख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट, बुलेट बना के लिखो. ट्राई टू मेक अ बुलेट, एक स्मॉल बुलेट बना के लिखो. It's a living membrane. ठीक है, cell is a living membrane. Next point you can write, it have fine pores. It have fine pores. Is all of you writing? Yes, ma'am. Yes. Okay. If you all can put on your camera, that will be very good. Because मैं देख सकती हूँ ना. Okay. Try to put on your camera because class is being recorded. So please, अगर network issues नहीं हो तो please put on your camera. Let us move forward. It's a living membrane, have fine pores. Okay. It's also a semi-permeable membrane. Does anyone want to say anything? Ma'am, please first one repeat. Yes, Ayush, you're not audible to me. Can you speak a little louder? Ma'am, please repeat first point. Okay, first one, yes, sure. If
if you miss anything, please ask. Okay. So आपने इतना लिख लिया, also known as plasma membrane. Ayush, you have written this, also known as plasma membrane. No, ma'am. From starting, I have to write. Okay, I'll repeat. Listen carefully. Okay. आपको पहले लिखना है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद लिखना है ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन हाइफन लगा के, एरो लगा के, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. फिर उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है, एक बुलेट बनाना है, लिखना है इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन. ओके, इट हैज लाइफ इन इट. इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट इट हैज fine pores. It consists of fine pores. It have fine pores. Okay. Then third point you have to write it is a semi-permeable membrane. Or you can write it is semi-permeable. Okay. I'm moving forward. Okay. Now listen carefully. Don't write. In plants, cell membrane is covered by cell wall. Okay, plants में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन किससे कवर्ड होता है? सेल वॉल से. हमने कल प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा. तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. तो प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद सेल वॉल. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गिव्स शेप टू द सेल एंड इज फ्रीली परमेबल. तो अभी जब हम आगे पहले बात कर रहे थे सेमी परमेबल, वो हो गया एनिमल्स में. प्लांट्स में जो होता है फ्रीली परमेबल होता है. ओके, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ फ्रीली परमेबल होता है. गिव्स शेप टू द सेल. ठीक है, सेल वॉल क्या करता है? सेल को शेप देता है. तो यू कैन राइट इन प्लांट्स सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय सेल वॉल. है ना, आपने डिफरेंस में भी देखा ही था, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है. तो आप प्लांट्स में लिख सकते हो सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय सेल वॉल. और सेल वॉल के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो सेलुलोज, ताकि आपको पता पड़ जाए कि किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है. ओके. अब सेल वॉल के ब्रैकेट में सेलुलोज लिख के ये मत समझ लेना कि सेलुलोज और सेल वॉल एक चीज है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, या फिर आप पूरा लिख लो इट इज मेड ऑफ सेलुलोज. एंड व्हाट इट डज, इट गिव्स शेप टू द सेल. ठीक है, प्लांट्स में ही नीचे लिख लो सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल. And then next point you can write it is freely permeable. Did you miss anything? Shall I repeat? Ma'am, from in plants, you can you repeat? Yes. In plants, comma करके लिखो, एक पॉइंट बना लो, देन लिखो सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय सेल वॉल. ओके, सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय सेल वॉल. सेल वॉल के बाद ब्रैकेट में लिख लो सेलुलोज, और यू कैन राइट इट इज मेड ऑफ सेलुलोज. ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या तो ब्रैकेट में लिख लो या फिर पूरा लिख लो इट इज मेड ऑफ सेलुलोज. CELLULOSE, सेल्यूलोज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स शेप टू द सेल. ओके, सेल वॉल क्या करता है? सेल को शेप देता है. राउंड शेप में अगर होता है एनिमल प्लांट सेल, अगर जो शेप है उसका, वो शेप कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. फिर लिख लो इट इज फ्रीली परमेबल. ओके, एनिमल सेल इज सेमी परमेबल एंड दिस इज फ्रीली परमेबल. प्लांट्स में सेल वॉल फ्रीली परमेबल होता है, एनिमल्स में तो होता ही नहीं है, और प्लांट्स में इट इज फ्रीली परमेबल. ओके, Ma'am, please repeat. It gives the shape of. From the shape, okay, it gives shape to the cell. That is the next point. It gives shape to the cell, and then you can write next point. It is freely permeable. Okay, ma'am. Okay. So ये हो गया सेल मेम्ब्रेन. ओके, अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ये हमने थोड़े से में कंप्लीट कर लिया. Just a minute. Okay, so cell membrane is clear to you all.
I hope it's clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next is cytoplasm. Okay, first one is over. Essential part में first one हमने लिख लिया है cell membrane. Next आता है cytoplasm. तो cytoplasm के बारे में अगर हम लिखेंगे characteristics of cytoplasm अगर पूछेंगे तो you can write it's a semi liquid. Okay, point number 1 bullet बना लो, point बना लो, लिखो it's a semi liquid. It is a semi liquid. Okay. Next point you can write it is located inside the cell membrane. साइटोप्लाज्म कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक वाटरी लिक्विड होता है. हमने देखा था डॉट 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 बनाते हैं हम लोग डायग्राम में. वो एक लिक्विड है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है. ओके. Yes, ma'am. Okay. So you have written located inside the cell membrane. Okay. And outside nucleus. उसके सामने ही लिखो, पॉइंट अलग मत बनाना. उसके सामने ही and outside nucleus. मतलब सेल साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है और आउटसाइड न्यूक्लियस. क्योंकि आपने डायग्राम में देखा होगा न्यूक्लियस जो है सेल के जस्ट बिल्कुल सेंटर में होता है, साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में. तो न्यूक्लियस अगर ये है तो साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियर के बाहर ही है ना. न्यूक्लियस अगर ये है तो साइटोप्लाज्म उसके सराउंडिंग में है, तो मतलब बाहर है, आउटसाइड द न्यूक्लियस. और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है. ओके. जब भी मैं कुछ बोलती हूँ डायग्राम को इमेजिन कर लो. आप अपना डायग्राम ही देख लो, उसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म दिख रहा है और न्यूक्लियस बीच में है, तो न्यूक्लियस के बाहर है, आउटसाइड द न्यूक्लियस. ओके. फिर आता है इट कंटेन्स ऑर्गेनल्स. अब हमने देखा साइटोप्लाज्म के ही अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर द ऑर्गेनल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम. दीज आर द ऑर्गेनल्स. ये कहाँ प्रेजेंट है? पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर है ना, एक जगह इकट्ठा नहीं हुए. दीज आर ऑल डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म. तो यू कैन राइट इट कंटेन्स ऑर्गेनल्स. इजी आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, so write it down. It contains organelles. Then comes the next point. अब next point कैसे लिख सकते हैं हम? Chemical reaction occurs here. Okay, सारी chemical reactions जो भी होती है वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. Because organelles भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, तो सब कुछ इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा. साइटोप्लाज्म के ही अंदर chemical reactions होती है. तो you can write it down. Chemical reaction occurs in the cytoplasm. Or you can write chemical reaction occurs here. Here से आप समझ जाओगे साइटोप्लाज्म की बात हो रही है तो वहीं पे ही होगा. तो chemical reaction occurs here. Next point में आप लिख सकते हो. Okay, I am making you write also. और मैं समझा भी रही हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपके नोट्स भी बन जाए, है ना. आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. नहीं तो आई कैन जस्ट मैं समझा के भी आगे जा सकती हूँ, बट फिर आपका नोट्स रह जाएगा. बिकॉज हमारे पास अभी पीपीटी भी नहीं है, पावर पॉइंट पीडीएफ कुछ नहीं है. So that's why I'm making you write the notes. Please write it down. Chemical reaction occurs here. उसके बाद cytosol is also present, which is a liquid medium. This cytoplasm के अंदर cytosol भी होता है, जो भी एक liquid medium होता है. Okay, एक liquid medium होता है. लिख लिया? Cytosol is also present और ब्रैकेट में लिख लो liquid medium. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. लिख लिया? Okay. So we'll move towards the next point, which is the nucleus. Okay. हमने बात कर ली सेल मेम्ब्रेन. Yes, आयुष. मैम वो साइटोसॉल, CYTOSOL, साइटोसॉल, which is also a liquid medium, है ना. ये साइटोसॉल साइटोप्लाज्म के ही अंदर प्रेजेंट होता है. तो you can write cytosol is present, ब्रैकेट में लिक्विड मीडियम लिख सकते हो ताकि आपको पता पड़ जाए इट्स अ लिक्विड मीडियम. ओके. साइटोप्लाज्म भी एक लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, और साइटोसॉल भी एक लिक्विड मीडियम है. ओके. कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So
नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। दो हमने बात कर ली एसेंशियल पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। तो व्हाट यू कैन राइट अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे ही मैं बोल रही हूँ, इमेजिन न्यूक्लियस का डायग्राम। न्यूक्लियस कैसा होता है? गोल होता है। फिर हमने बात की थी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, अंदर एक डार्क पोर्शन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग लिख सकते हैं, इट इज स्फेरिकल शेप्ड, है ना, गोल है, स्फेरिकल शेप्ड। और क्या है, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था तो हमने बात की थी कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो न्यूक्लियस इन जनरल फिर कहाँ पे हुआ? बिल्कुल साइटोप्लाज्म के बीच में, है ना। साइटोप्लाज्म बाहर है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, स्फेरिकल दिख लिया, ओके, इट इज स्फेरिकल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर इट इज सेंटर्ड एट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में है न्यूक्लियस, तो इट इज, उसका सिचुएशन कहाँ हुआ, उसका लोकेशन कहाँ हुआ? सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये सब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, ओके। सेल मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। तो न्यूक्लियोलस जो है, सॉरी, न्यूक्लियस जो है सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। लिख लिया? Yes, ma'am. ओके। फिर Yes, क्या ma'am. लिख सकते हो? थर्ड पॉइंट यू कैन राइट, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द ग्राउंड सब्सटेंस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? अपने डायग्राम में देखा था, आई विल ड्रॉ। अच्छा, आपको दिखेगा नहीं ऐसे तो, ओके। न्यूक्लियोलस जो है, आपने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बुक में भी होगा शायद, ये रहा, ओके। पेज नंबर 2 पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, उसमें बीच में एक राउंड बॉल है, न्यूक्लियोलस, है ना। तो आप न्यूक्लियोलस की जगह, हाँ, आप लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियोलस के बाद, न्यूक्लियोलस के साइड में जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जो न्यूक्लियोलस को कवर कर रहा है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ओके। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जो न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोलस को प्रोटेक्ट भी करता है और अंदर का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द ग्राउंड सब्सटेंस, ओके। Yes, तो ma'am. यू हैव, ओके। तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया, आपके बुक में पेज नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियोलस सबसे अंदर, और न्यूक्लियोलस का वर्ड किससे है? न्यूक्लियोप्लाज्म से। और सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और छोटे छोटे पोर्स भी है, बीच में 2-3 पोर्स है बाहर मेम्ब्रेन्स में, उनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और अंदर कुछ थ्रेड लाइक फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स। तो आप क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में भी लिख दो, कि लास्ट पॉइंट ये भी लिख दो, क्रोमैटिन फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट। और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। Ma'am, क्रोमैटिन repeat. फाइबर, okay, last point is chromatin fibers are also present. Chromatin, chromatin, chromatin fibers, fibres, okay. Chromatin fibers are also present. ब्रैकेट में लिख दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर क्रोमैटिन फाइबर्स? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो ब्रैकेट में यू कैन राइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, Yes, ma'am. ओके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज द ऑर्गेनल्स। Organelles are the specialized and membrane-bound living structures in a cell concerned with definite function. अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। व्हाट आर द ऑर्गन्स? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, ये सब हमारे बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो वैसे ही जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा प्लांट और एनिमल सेल में, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनल्स? कौन कौन से थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोसोम, ये सब ऑर्गेनल्स होते हैं, ओके। तो आप लोग सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं
या समझने के लिए और इजी करने के लिए मैं बताती हूँ, आप लोग लिख सकते हैं इन ह्यूमन बॉडी एरो लगा के ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, एंड इन अ सेल एरो लगा के ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, और फिर उसको एरो लगा के ऑर्गन्स और एरो ऑर्गेनल्स को आप लोग जोड़ के एरो बना के उसको जोड़ो साथ में और लिखो बोथ परफॉर्म फंक्शंस। ऑर्गेनल्स और ऑर्गन्स दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डिफरेंस यही है कि ऑर्गेनल्स सेल के अंदर होते हैं, ऑर्गन्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो उनका वो क्या करते हैं, मेनली वो फंक्शन करते हैं, बोथ परफॉर्म फंक्शंस, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, ये सब ऑर्गन्स ही परफॉर्म करते हैं। ये इनके बीच में एक कॉमन चीज हो गई, ऑर्गेनल्स और ऑर्गन्स के बीच में कॉमन चीज यही है कि बोथ परफॉर्म फंक्शंस। लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, फॉर एग्जाम्पल Yes, यू ma'am. कैन राइट लंग्स। लंग्स को आप एग्जाम्पल ले लो, लिखो एग्जाम्पल लंग्स, एरो लगा के लंग्स क्या करता है, रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है लंग्स, है ना। तो लंग्स हेल्प्स अस टू रेस्पायर। तो लंग्स जो हो गया वो ऑर्गन हो गया, और रेस्पिरेशन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। लंग का फंक्शन रेस्पिरेशन। तो ये सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया है कि लंग रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। वैसे ही अगर आप प्लांट सेल का एग्जांपल ले लो, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रीन कलर देते हैं क्लोरोफिल की तरह ही, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया, लंग्स पहला एग्जांपल हो गया, और क्लोरोप्लास्ट एक दूसरा एग्जांपल आप प्लांट सेल के लिए ले सकते हो। ऐसा लिख लो, प्लांट सेल ब्रैकेट में लिख लो और लिखो क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल्स। ओके, फिर सेल में कुछ लिविंग पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना। अभी हमने पढ़ा था, हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिस्कस किया था। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो सेल के लिविंग मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था, अगर न्यूक्लियस एक बॉडी में से निकल जाता है तो वो, जैसे अमीबा है, अमीबा से अगर न्यूक्लियस को निकाल दे तो अमीबा मर जाएगा, वैसे ही न्यूक्लियस लिविंग सेल होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम एक साथ एक वर्ड देते हैं, एक नाम दिया गया है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं। इन प्लांट सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक दूसरा नाम दिया गया है। एनिमल्स का पूछे तो आपको अलग अलग ही लिखना है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, बट प्लांट सेल में अगर पूछा जाए तो उनको एक नाम दिया गया है, joining the cytoplasm and nucleus there is one name which is known as protoplasm or the protoplast। protoplasm हाइफन लगा के स्लैश लगा के आप लिख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट। दिस इज द नेम जस्ट गिवन टू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, कंबाइन करके इसको प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, और कुछ नहीं है। ओके, हैव यू रिटन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो अब हम कुछ जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, इसका कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन जस्ट डिस्कस करेंगे। डोंट राइट बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी इसमें 5-6 पॉइंट ऐसे सब में हो जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्लास खत्म भी नहीं होगी। मैं इसके नोट्स आपको पीडीएफ या पीपीटी के फॉर्म में बाद में आपके ग्रुप में डाल के दूंगी, आप उससे याद कर सकते हो। अगर आपको इजीली लर्न करना है तो आप नोटबुक में लिख के भी ले सकते हो। ओके, तो बिकॉज आपको टाइम भी लगेगा लिखने में, मैं रिसाइट करूंगी, ठीक है, तो बहुत टाइम लगेगा लिखने में, तो इसके नोट्स मैं बाद में दूंगी, अभी आप समझ लो बस। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट होते हैं, है ना। एनिमल सेल में देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होते हैं, पर अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और चीज होती है जो कि सेल वॉल होती है। तो एनिमल सेल में फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, आउटर मोस्ट होता है, और एनिमल सेल में मिलता है आउटर मोस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं कि नेक्स्ट टू, अच्छा प्लांट का तो हमने बोल दिया, सेल वॉल के नेक्स्ट में होता है।
ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं? इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, हमने देखा डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होता है ना, थिन और मुड़ा हुआ, ऐसा गोल होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट्स फ्लेक्सिबल, गोल होता है, और सॉलिड या स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस भी नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और थिन होता है। ओके, फिर सेल मेम्ब्रेन्स में फाइन पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्यों होते हैं? उनकी परमिएबिलिटी के लिए, जो बाहर की चीजें, बाहर के सब्सटेंसेस सेल के अंदर आने होते हैं। जैसा हमने बात किया कि सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल होता है और फ्रीली परमिएबल होता है, तो उसके लिए फाइन पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बने होते हैं? लिपोप्रोटीन से। हमारी बॉडी में बहुत सी चीजें ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस से ही बनी होती है, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, ये सब ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं और उनसे हमारी बॉडी में चीजें बनती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है लिपोप्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ओके, तो हम उसको प्रोटीन को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, इट्स बायोलॉजी। सो आपको सिर्फ इतना लिखना है, एसपीएम इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन्स। आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एसपीएम भी बोल सकते हो, अगर आपको लिखने हैं एग्जाम में भी आप लिखते हो। एग्जाम में आप पूरा लिखना कोशिश करना कि पूरा लिखो, और जब आप नोट्स में लिखोगे तो यू कैन राइट इट एसपीएम। ओके, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाएगा? सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग में से सेल के कंटेंट को सेपरेट करने का काम है सेल मेम्ब्रेन का। जैसा हमने कहा, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की वजह से कुछ चीजों को अंदर आने देता है, सारी चीजें अंदर आने नहीं देता, सारे सब्सटेंस। तो उसका काम यही है कि वो सेपरेट करता है सराउंडिंग्स के कंटेंट को फ्रॉम एंटरिंग द सेल। तो यू कैन राइट, अभी नहीं, आई गिव यू द नोट्स, पर समझने के लिए मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सेकंड पॉइंट क्या आता है? रेगुलेट्स एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस। क्या करता है? जैसा हमने बोला सेमी परमिएबल होता है, इसलिए कुछ सॉल्यूट और कुछ आयंस की एंट्री को रेगुलेट करता है, मतलब कुछ को ही अंदर आने देता है, सब सॉल्यूट और सब आयंस अंदर नहीं आ सकते। सॉल्यूट क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो सबको अंदर आने नहीं देता है, उसकी परमिएबिलिटी की वजह से कुछ पार्टिकल्स ही अंदर आ पाते हैं। ओके, तो उसकी एंट्री को रेगुलेट करने का काम भी करता है सेल मेम्ब्रेन। फिर आता है मेंटेन्स शेप ऑफ सेल। हमने बात पहले ही कर ली, एनिमल सेल में हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन शेप देता है सेल को। ओके, दिस मच इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके ओके, जस्ट अ मिनट, थोड़ा पानी पी लूं मैं। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द सेल वॉल। अभी हमने सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, अब सेल वॉल के बारे में हम बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेल वॉल का देखा जाए तो ये एक नॉन लिविंग लेयर होता है। ठीक है, सेल वॉल लिविंग मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, सेल वॉल नॉन लिविंग लेयर होता है विच सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को कवर करने वाला एक वॉल होता है सेल वॉल, जो कि नॉन लिविंग होता है, और सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। फिर आता है इट इज कंपोज ऑफ सेलुलोज। हमने पहले ही बता दिया कि सेलुलोज से उसका कंपोजिशन होता है सेल वॉल का। सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में तो होता ही नहीं है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल। ठीक है, जैसे ही सेल वॉल आएगा, इमेजिन प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में ही सेल वॉल होता है। कंपोज ऑफ सेलुलोज इज द नेक्स्ट पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है? फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल होता है, वो बहुत सी पार्टिकल्स को अपने अंदर आने देता है, बट सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, वो कुछ चीजों को ही अंदर आने देता है। ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसको याद करके रखना कि सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल एंड सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली और सेमी परमिएबल। ओके, दोनों में डिफरेंस है। अब फंक्शन की बात करें अगर सेल वॉल का, तो इट गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू प्लांट सेल। प्लांट सेल की शेप में एक तो शेप देता है उसको, और रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स एक टफनेस, एक हार्डनेस, की मतलब सब कुछ अंदर नहीं आ जाए, इसलिए उसको बचाता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको रिजिड रखने के लिए यूज होता है, उसका फंक्शन है। सेल वॉल गिव्स रिजिडिटी एंड प्रोवाइड्स
shape to the plant cell. Next point is allow substance to enter and exit cell, है ना, सब्सटेंस को अलाउ कर रहा है क्योंकि वो फ्रीली परमिएबल है, तो सब्सटेंस अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, है ना। एनिमल सेल की तरह नहीं है, मेम्ब्रेन की तरह नहीं है, सेल मेम्ब्रेन में तो सेलेक्टिवली परमिएबल था, इधर अंदर भी आते हैं सब्सटेंस, बाहर भी जाते हैं, ठीक है, अलाउ करता है उनके सब्सटेंस की एंटरिंग और एक्सिट के लिए। फिर आता है थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड्स ओवरऑल प्रोटेक्शन। सेल वॉल यूजुअली क्या कर रहा है, पूरा बाहर है, आउटर मोस्ट होता है, तो वो एक्चुअली अंदर के ऑर्गेनल्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ओवरऑल प्रोटेक्शन दे रहा है। ओके, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेल वॉल के फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो गए। अब आता है साइटोप्लाज्म, उसमें भी आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन। consists of all parts inside plasma membrane except nucleus. Okay, so consists of all parts inside plasma membrane except the nucleus. तो साइटोप्लाज्म जो होता है, जैसा हमने देखा न्यूक्लियस सबसे अंदर होता है, तो साइटोप्लाज्म में एक्चुअली डिस्पर्स्ड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, बाकी सारे एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ओके, बाकी सारे कौन से जो हमने बात की, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब साइटोप्लाज्म में कवर होता है एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। तो आप लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा क्या हो गया, इट कंटेन्स वाटर प्लस सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल्सो वेरियस ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसमें वाटर, अब हमने देखा साइटोप्लाज्म वाटरी सब्सटेंस होता है, सेमी लिक्विड होता है, तो इसमें मेनली वाटर तो हो गई, ठीक है, इट कंटेन्स वाटर प्लस कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस भी होते हैं जो मतलब घुल सके, घुलने वाली चीजें, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बोथ, दोनों सब्सटेंस होते हैं, प्लस कुछ ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स हमने पहले ही बोल दिया कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। फिर इसके फंक्शन में आता है, डिफरेंट ऑर्गेनल परफॉर्म वेरियस फंक्शन, हर एक ऑर्गेनल का एक एक फंक्शन है, जैसे हर एक बॉडी ऑर्गन में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पायर करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करता है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर हियर। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी होते हैं, प्रोडक्शन होता है, सिंथेसिस होता है, ये सब कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे हमने पहले पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, वैसे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। फिर आता है मीडियम फॉर अर्लियर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी ये एक मीडियम की तरह यूज होता है, साइटोप्लाज्म अर्ली स्टेजेस जो रेस्पिरेशन का होता है उसमें भी एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, पूरा रेस्पिरेशन नहीं बल्कि जब बस जस्ट एज अ मीडियम एक्ट करता है। ओके, फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम उसकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इट इज अ इरेगुलर नेटवर्क, ठीक है। हमने डायग्राम में देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा बिल्कुल बहुत ही इरेगुलर शेप में होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ओवल शेप में है, लाइसोसोम ओवल शेप है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमने देखा तो वो इरेगुलर शेप होता है, ऐसा ऐसा, है ना, फिंगर लाइक ऐसे शेप में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक यही आता है कि वो इरेगुलर नेटवर्क है। फिर आता है कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पूरे सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंटिन्यूअस रहता है, हर जगह दिखता है, डिस्पर्स रहता है ना, एक जगह पे इकट्ठा नहीं है। अब ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, बस डिफरेंस यही है कि ऊपर नीचे अलग अलग टाइप के रेटिकुलम देखने को मिलेंगे आपको, कहीं रफ देखने को मिलेंगे, कहीं स्मूथ देखने को मिलेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है मे बी स्मूथ मे बी रफ when राइबोसोम अटैच, जब राइबोसोम जो स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं वो अटैच हो जाएंगे तो रफ हो जाएंगे, अदरवाइज स्मूथ होते हैं, तो वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क होते हैं सेल के, ठीक है, दे एक्चुअली सपोर्ट द सेल, ठीक है। फिर होता है सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट, प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस, प्रोडक्शन, ठीक है, सब कुछ इधर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। फैट का, प्रोटीन का सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट दोनों कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा।
ठीक है, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सब में 2-3 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, 2-3 फंक्शन लिखने हैं बस। अगर एग्जाम में आता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फंक्शंस आल्सो, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया उसका इरेगुलर नेटवर्क, इरेगुलर जो शेप है और जो नेटवर्क उसका फैला हुआ है, कंटिन्यूस जो है पूरा डिस्पर्स रहता है, ठीक है, स्मूथ एंड रफ। बस इसमें तो ये 2 पॉइंट ही है। फंक्शन में सपोर्टिव है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ सेल, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट इधर होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी इधर ही होता है। ये चीज आपको फंक्शन में लिखनी है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग लेक्चर नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग स्पीड फास्ट है तो यू कैन राइट, जो भी मैं बोल रही हूँ आप लोग लिख भी सकते हैं। और इसके अलावा भी आई गिव यू नोट्स, प्रॉपर नोट्स दूंगी मैं आपको, ठीक है। पीपीटी के फॉर्म में आपके ग्रुप में ही डाला जाएगा, इसी में ही टीम्स में डाल देंगे, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। देन फिर आगे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप आपने देखा होगा, ओवल शेप होता है, ठीक है। तो सॉसेज आपने देखा है, सॉसेज आपने देखा होगा, सॉसेज हम खाते हैं तो उसका शेप भी ऐसा होता है, लॉन्ग ओवल शेप। तो वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, तो हम लिख सकते हैं इट इज सॉसेज शेप्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आ गया डबल वॉल्ड होता है ना। सिंगल वॉल और डबल वॉल पढ़ा है हमने। तो कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं सिंगल वॉल्ड होते हैं, कुछ डबल वॉल्ड होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो इसलिए वो डबल वॉल्ड होते हैं, ठीक है। उनकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स। फिर आता है इनर वॉल फोल्ड्स एंड कॉल्ड एज क्रिस्टे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस ओवल शेप के अंदर आपने देखा होगा ऐसे कुछ फोल्ड्स होते हैं, फिंगर जैसे दिखते हैं, ऐसे 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 फोल्ड्स होते हैं। उन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे, ठीक है। ये उनको दिया गया नाम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्रिस्टे जो है कुछ फोल्ड्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही डीएनए होता है, ठीक है। वो किसी से उनको बाय नहीं करना होता, उनका खुद का अपना डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम भी होता है, ठीक है। कहीं से कुछ अटैच नहीं हो रहा, खुद के ही राइबोसोम, खुद के ही डीएनए, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। तो खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, ठीक है, फोल्ड्स होते हैं, डबल वॉल्ड होता है, सॉसेज शेप होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फंक्शन क्या हो गया? मेन फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? उसको एक नाम दिया गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है, और एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एनर्जी हमें पावर देता है, काम करने की शक्ति, पावर देता है, तो इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जा रहा है, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज हियर। तो एक फंक्शन यही हो गया, इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। इट ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी, एनर्जी स्टोर भी कर रहा है, ठीक है। फिर सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर आता है सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेशन में जो भी एंजाइम्स यूज होते हैं, जितने भी एंजाइम्स रेस्पिरेशन में यूज हो रहे हैं, उनका सिंथेसिस भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को, ठीक है। ये फंक्शंस हो गए। फिर आ गया गोल्गी अपैरेटस। अपैरेटस की बात कर हम करेंगे तो ये एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस हमने देखा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। अब आगे का पॉइंट यही लिखा है, कंसिस्ट ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। इनके अंदर वैक्यूल्स, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, राउंड राउंड शेप के आपने देखे होंगे, वेसिकल्स भी होते हैं, और वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन की बात करें तो ये भी सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स एक्सेट्रा। जो भी हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारी बॉडी एक्टिविटीज के लिए चाहिए, उनका सिंथेसिस प्लस सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब उनका जमा करना, उनको स्टोर करके रखना। सिक्रेशन और सिंथेसिस दोनों ही गोल्गी अपैरेटस में होता है। किन चीजों का? एंजाइम्स और हार्मोन्स का, जो भी बॉडी फंक्शंस में यूज होते हैं। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, दैट इज द स्पर्म, ओके।
जो मेल स्पर्म है उसका फॉर्मेशन के लिए भी गोल्गी अपैरेटस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो सेल को हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं लाइफ का, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनके अंदर सेल है, ये सब ऑर्गेनल्स ही ये चीजें ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आप सोचो इतना छोटा माइन्यूट सा सेल इज डूइंग एवरीथिंग, इज परफॉर्मिंग एवरी फंक्शन। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि सबको एक एक फंक्शन दिया गया है, पर मोस्टली सब लोग सिंथेसिस का काम कर रहे हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो सपोर्ट के साथ साथ सिंथेसिस भी कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया भी जैसे एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो साथ में सिंथेसाइज भी कर रहा है एंजाइम्स को। गोल्गी अपैरेटस भी सिंथेसिस और सिक्रीशन कर रहा है एंजाइम्स और हार्मोन्स का। तो सिंथेसिस तो मेन फंक्शन है ही इन ऑर्गेनल्स का। तो आप लोग ये सिंथेसिस तो याद ही कर लेना कि ये हर एक ऑर्गेनिज्म में सिंथेसिस तो होता ही है ऑर्गेनल में। फिर आता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में भी फंक्शन एक ही है, प्रोटीन सिंथेसिस, बस प्रोटीन का सिंथेसिस वहां हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर करें तो स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं। ठीक है, दीज आर स्मॉल ग्रैनुलर सब्सटेंसेस एंड नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट दीज आर डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड ऑल्सो गेट अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अटैच होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ से रफ हो जाता है। सिंगल वॉल्ड होते हैं और किससे कंपोज होते हैं, आरएनए से। इट्स नॉट डीएनए, राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड आर सिंगल वॉल्ड। ठीक है, सिंगल वॉल होते हैं। फिर आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेनियस सैक्स होते हैं, बर्डेड ऑफ द गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी में से ये लाइसोसोम निकल जाते हैं और एक अपने आप में एक मेम्ब्रेनियस छोटे छोटे सैक्स बन जाते हैं जो कि फुल ऑफ मेम्ब्रेनियस सब्सटेंसेस से पूरे फुल होते हैं वो। ठीक है, कंटेन्स 40 डिफरेंट एंजाइम टाइप। अब लाइसोसोम के अंदर 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम भी एक तरीके का थोड़ी है, बहुत टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर ही 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम देखने को मिलेगा। अब उसके फंक्शन बोले तो लाइसोसोम डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। फिर डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे हमने पहले बात किया, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं बिकॉज इट्स डिस्ट्रॉयज इट्स ओन सेल एंड डाइजेस्ट्स। तो खुद के ही सेल को डाइजेस्ट करके खाता है, तो इसलिए हम उसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। और फॉरेन सब्सटेंसेस, जो बाहर की फॉरेन सब्सटेंसेस है, उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। फिर इट डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। बोन का जो फॉर्मेशन होता है, जो छोटी छोटी कार्टिलेजेस जब फॉर्म होती है, उनको भी ये डाइजेस्ट कर लेता है। तो एक तरफ से लाइसोसोम, मतलब देखा जाए तो ये सुसाइडल बैग्स भी इसको इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय करके खा रहा है। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस को भी, फॉरेन सब्सटेंसेस जो भी होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, कार्टिलेजेस को भी ये डाइजेस्ट कर रहा है बोन के फॉर्मेशन के टाइम पे। तो इसलिए ये सुसाइड बैग्स इसलिए इसको बोलते हैं। मेनली इसका काम क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में ही काम आ रहा है ये इतनी चीजें डाइजेस्ट कर रहा है। तो इधर कुछ सिंथेसाइज नहीं होता है, इधर मेनली डाइजेशन होता है। लाइसोसोम इज मेनली मेंट फॉर डाइजेशन। ओके, फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट पास में आपको एक छोटा सा स्फीयर देखने को मिलेगा जिसमें ऐसा पॉइंट रहता है बाहर, वो होता है सेंट्रोसोम। जस्ट न्यूक्लियस के साइड में आपको देखने को मिलेगा डायग्राम में। ओके, इट्स सराउंड सेंट्रियोल्स। अब न्यूक्लियस के वहां साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको सराउंड भी करता है सेंट्रोसोम। 1 और 2 सेंट्रियोल सब उसमें प्रेजेंट होता है। ये आप 2-3 पॉइंट सेंट्रोसोम में लिख सकते हैं कि 1-2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम मेनली सेंट्रियोल को सराउंड करता है और न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शन में आता है, फंक्शन में सेंट्रोसोम जो है सबसे अलग है। ये सिंथेसाइज डाइजेस्ट कुछ नहीं कर रहा है, ये सेल डिविजन करता है। ठीक है, ये इनिशिएट करता है सेल डिविजन को, ओके, प्रमोट करता है और रेगुलेट भी करता है। स्टार्ट करके उसका रेगुलेशन भी सेंट्रोसोम ही करता है। सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस आपने पढ़ा है, उसमें मेनली सेंट्रोसोम काम आता है। ओके, मियोसिस में आपने पढ़ा होगा सेंट्रोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सब मेनली सेल डिवीजन कर रहे हैं। ऑल्सो इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स।
ये डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं। स्पिंडल इसलिए नाम दिया गया है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं ना, ऐसे 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 फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, इसलिए स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। फिर आता है प्लास्टिड्स। ओके, प्लास्टिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, सेवरल टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन ग्रीन वंस होते हैं जो क्लोरोफिल होते हैं, जो लीव्स में ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, क्लोरोफिल, वो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। उसके अलावा कौन कौन से टाइप के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अलावा, क्लोरोफिल के अलावा ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट इज व्हाइट इन कलर, ट्रांसपेरेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो पेटल्स को कलर देते हैं। हमने कल बात की थी, शायद मैंने 9th को पढ़ाया था कि आपको पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें भी दो टाइप होते हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटिन। ज़ैंथोफिल जो है येलो कलर देता है, कैरोटिन जो है वो रेड और ऑरेंज कलर देता है। पेटल्स के कलर यहीं से ही आते हैं। तो ये प्लास्टिड्स में मतलब मोस्ट कॉमन ग्रीन कलर होता है। सेवरल टाइप इसलिए बोला गया है क्योंकि 3 टाइप हमने पढ़े, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन होता है। प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स कंटेन्स डीएनए, ठीक है, डीएनए कंटेन करता है। और प्लास्टिड्स के अंदर का जो सब्सटेंस होता है, जो कंपोजिशन होता है, मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स हम कंपोजिशन को बोलते हैं, बहुत ही प्रोटीनेशियस होता है, इट्स फुल ऑफ प्रोटीन्स। ओके, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स also known as thylakoids are present. प्लास्टिक्स के अंदर कुछ डिस्क जैसे सब कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स आपको टर्म याद करना पड़ेगा। इट ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोफिल, थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल होता है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, डिस्क शेप्ड होते हैं। अब इनके फंक्शन अगर देखा जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्रोमोप्लास्ट जो है कलर इम्पार्ट करता है फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, हाँ बताया, और ज़ैंथोफिल येलो देता है, कैरोटिन ऑरेंज और रेड देता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सोलर एनर्जी ट्रैप करता है, ठीक है, सोलर एनर्जी को पकड़ता है ताकि फोटोसिंथेसिस में काम आ सके। ग्रीन कलर देता है क्लोरोप्लास्ट, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी ट्रैप करता है। जैसे अपन ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, सनलाइट मेन चाहिए होता है ना, सनलाइट में सोलर एनर्जी चाहिए, तो उसको ट्रैप करने का काम क्लोरोप्लास्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है चार्ज को स्टोर करता है और व्हाइट कलर्ड होता है। फिर आता है एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट इज डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म। एंथ्रोसाइनिन जो होता है एक तरह का पिगमेंट है जो कि साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होता है। उसका कलर ब्लू वायलेट कलर होता है, ठीक है, इट्स अ पिगमेंट। जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया ग्रीन कलर जैसा है, वैसे ही एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट जो है ब्लू वायलेट कलर देता है। ओके, सो ओके, it's already 10:20, तो न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 आर लेफ्ट। हमें 5 और के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। अभी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन फाइबर्स, वैक्यूल्स और ग्रैन्यूल्स है। तो हम लोग इसके बारे में कल बात करें या नहीं? कल तो छुट्टी है आपकी, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तब करें। और यू वांट मी टू रिसाइट इट राइट नाउ, मतलब अभी बोल दूं, बिकॉज इट्स 10:20, शायद टाइम लगेगा, एज यू ऑल से। मैम What should we नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास। Yes, ma'am. ओके, आज के लिए बहुत हो गया है ना, तो आज का समझ आया? यू अंडरस्टूड डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट यू हैव? किसी को कोई भी डाउट No, है? ma'am. आस्क मी राइट नाउ। ओके, नो डाउट। I hope everyone is clear with the topic जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। We already learned about these things in yesterday's class। हमने कल देखा ही था, बट आज हमने थोड़ा और डिटेल में देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फंक्शन क्या है। कल तो हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, आज हमने फंक्शन भी डिस्कस किया है। तो अभी 5 और है, तो फिर ये अभी टाइम एक्सीड हो जाएगा हमारा, तो इसलिए विल स्टॉप हियर। तो विल मीट ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लास, और हम ये नेक्स्ट क्लास में हम ये पांचों डिस्कस करेंगे। इसके बाद सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है ऑनियन पील पे, और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आई गेस। या यस, ऑनियन पील एंड देन न्यूक्लियस का, यस, न्यूक्लियस द की टू लाइफ ऑफ अ सेल। फिर उसके बाद आपका चैप्टर खत्म है, तो मे बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग सीधा एक्सरसाइज और नेक्स्ट चैप्टर में ही जाएंगे। तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।
Okay, you all can leave. अगर आपको next class नहीं है और कोई तो you all can leave. Thank you for today. Thank you everyone.